How many of you feel highly favored? How many of you already feel deliverance coming into your families? How many of you already sense the greatest miracle is on the way? How many of you sense that your greatest breakthrough is one step away? What you believe is what you will receive in the next couple of days. I told somebody, the last time I came here, I told somebody, at the end of the 21st day, saturate. सैचुरेट के 21 दिन के बाद या जो अंतिम दिन जो होगा, that breakthrough which you were waiting on all these years, it's surely going to come to pass. वो विजय जिसके लिए आप इतने सालों से आप पूछे हुए थे, वो जरूर आपके जीवन में How many of you believe that? Make a noise in this place. आप मुझे जितने भी इस बात पर विश्वास करते हैं, धर्मी से आवाज उठाएं। There is a miracle on the way. एक चमत्कार है जो अपने रास्ते पर है। You have heard testimonies from people. आपने लोगों से आपने गवाही सुनी है। You have heard others share their miracles. आपने दूसरों को अपनी गवाही सुनाते हुए, You have heard others in Sunday sessions coming up on the stage and sharing their miracle testimonies. और आपने रविवार के दिन आपने लोगों को देखा कि वो आगे आया, अपने चमत्कार को उन्होंने But बताया। it is your time now. लेकिन अब ये आपका समय है। By the end of 2016, I want to prophesy on somebody's life. और आज मैं किसी के जीवन पर भविष्यवाणी करना चाहूंगा कि 2000 साल खत्म होने के Your बाद entire family whom you've been praying for is going to come to the house of God. और आपका पूरा परिवार जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रभु के भवन में जरूर आएगा। Your family members are going to bow down to Jesus Christ. आपके परिवार के लोग झुकेंगे यीशु मसीह के सामने। All those people who used to insult you and speak against your God, their knees are going to bow down, their tongue is going to confess. You're going to see it with your own eyes, your people coming and testifying. और जितने भी लोग जिन्होंने आपकी बेइज्जती की, जिन लोगों के सामने आपको नीचे गिराया, वो खुद प्रभु के सामने आएंगे और अपनी गवाही को देंगे। God is going to lift somebody in the midst of his haters. और प्रभु किसी को तो आज यहाँ पर उठाने वाला। God is going to lift somebody right in the midst of his haters and haters. और प्रभु उसके दुश्मनों के सामने प्रभु अपने किसी एक व्यक्ति को खड़ा करने वाला, उसके सर को ऊंचा उठाने। You are going to go higher in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम में आप ऊंचाई पर जाने वाले। Somebody lift your right hand and say, I'm going higher in Jesus' name. कोई अपने दाहिने हाथ को उठाए, यीशु मसीह में Shout out and say, I'm going higher in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में ऊंचाइयों पर पहुंचने मैं वाला। ऊपर जा रहा हूँ यीशुआ के नाम से। I'm going higher यीशु के नाम में ऊपर जा रहा हूं। in Jesus' mighty name. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Amen. 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 Just receive it. I'm going to speak a couple of things from the stage right now. और आज मैं इस समय यहाँ से कुछ चीजें आपके जीवन पर घोषणा करना चाहता हूँ, उसे जरूर प्रभु से पाएं। Just receive it in Jesus' उसे name. यीशु मसीह के नाम से उसे अपने जीवन में ले। Somebody's financial miracle is on the way. किसी की आर्थिक जो चमत्कार है वो रास्ते पर। Your treasure is locating your address in Jesus' name. और आपका जो धन है वो आपके एड्रेस को ढूंढ रहा है। Somebody is delivered from fear in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से किसी के जीवन से भय निकल गया। Everything that used to trouble you, God is going to trouble your trouble. और हर वो चीज जो आपको सताती थी, अब परमेश्वर आपकी समस्या को सताना ठीक है, जो जीवित परमेश्वर की आराधना। Your daddy is not dead. आपका पिता मरा हुआ नहीं है, He is alive. वो जीवित है। And as long as he is alive and on the throne, no demon from hell can destroy you. और जब तक वो जीवित है, जब तक वो अपने सिंहासन पर है, कोई भी बात आपको छू नहीं सकती। Hold on. थामे रहे उससे। Don't give up. और अपने आप को उसे छोड़े नहीं। And don't be tired. और थके नहीं। God is on your side. प्रभु आपकी तरफ है। I said, hold on. मैंने कहा कि थामे रहे। Hold on. थामे रहे। You're coming with your biggest testimony. और आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही को लेकर आ रहे हैं। You guys are not losers. You're not a loser. और आप हारे हुए नहीं हैं। You guys are winners in Jesus' name. आप विजयी हैं यीशु मसीह में। Sit down. बैठ जाइए। Amen. Amen.
मैं विश्वास करता हूँ कि आज खुद तो आशीषित होगा यहाँ पर। I'm not come here to preach, मैं यहाँ पर प्रचार करने के लिए नहीं but आया, I've come here to give you the answers to the questions that you have in your heart. लेकिन आज मैं उन सारे सवालों का आपको जवाब देने आया हूँ जो आपके हृदय में रहे हैं। By the end of this meeting, you're going to walk out free. और इस सभा के अंत में आप यहाँ से आजाद होकर निकलेंगे। I can feel the presence right now और मैं यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति को महसूस करता हूँ in our midst. हमारे बीच में। And whenever he comes, he sets the captives free. और जब कभी भी वो आता है, वो ऐसे लोगों को जो बंधन में है उन्हें आजादी देता You है। can't be in his presence and be bound. और आप उसकी उपस्थिति में होकर आप बंधुआई में रहे या बंधन में रहे, ये नहीं हो सकता। You are free in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से आप आजाद हैं। I want you to go to the Gospel of Luke, chapter number 2. मैं चाहता हूं कि आप लूका की किताब खोलें और उसका दूसरा अध्याय निकालें। How many of you, before that, I want to ask you, how many of you are listening to me for the first time? Lift your right hand. और मैं चाहता हूं कि आप में से जितने भी मुझे पहली बार आज सुन रहे हैं अपने हाथ You को never उठाएं। heard me on television or YouTube or internet for the first time. और टीवी पर, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे आपने कभी मुझे नहीं सुना, लेकिन आज And पहली you बार live आप in मुझे सुन रहे Bombay, हैं। yeah? You live in Mumbai, right? You आप never मुं- heard. You आप never मुंबई में heard. रहते हैं, आपने कभी नहीं सुना। Yeah. Brother Benji, you can collect 1,000 rupees from these people. Amen. Amen. My name is Robin Almeida. मेरा नाम रॉबिन अल्मेडा है। क्या नाम है मेरा? कोई येड़ा बोला वहां से। Luke chapter number 2. लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय। And let's go to verse number 19. और हम 19वां वचन हम पढ़ेंगे। And mark that place with your finger or something and go right up to verse number 51. और आप उस वचन को आप अपनी उंगली से या कहीं से आप लगा लें और 51 वचन तक हम आगे जाएंगे। So we are just going to read 2 verses. तो हम 2 वचन हम पढ़ेंगे। Luke chapter number 2 verse number 19. लूका उसका दूसरा अध्याय और 19वां वचन। And we are going to read verse number 51. और 51 वर्स भी हम पढ़ेंगे। Are you all with me here? क्या आप सभी मेरे संग हैं? है क्या कोई मेरे साथ? आवाज करो ना इधर यार। But Mary treasured up all these things and she pondered upon them in her heart. परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही। I'll repeat that again. मैं फिर से उसे पढ़ूंगा। But Mary treasured up all these things and pondered upon them in her heart. परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही। I repeat it once again for the folks who are distracted. Listen to me very carefully. और फिर से अगर आपका ध्यान अगर यहाँ वहाँ हुआ है तो मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। The secret is in this verse right here. क्योंकि रहस्य जो है इसी वचन में है। Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. मरियम ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही। And I'm going to read verse number 51 for you. और हम दूसरा वचन पढ़ेंगे 51। And he went down with them and came to Nazareth and was submissive unto them. तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। But his mother kept all these sayings in her heart. और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में ही रखी। Are you getting me? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Are you getting me here? क्या आपको समझ में आ रहा है? Let me repeat verse number 51 once again because I'm preparing the ground and then we are going to take off. और फिर से हम इस वचन को पढ़ेंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वचन को समझें। And he went down, he means who? तब वह उनके साथ गया, वह मतलब कौन? Jesus went down with them and came to Nazareth and was submissive unto them, and his mother treasured up all these things in her heart. और
यीशु उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में ही रखी। Two special verses talking about a special woman who kept things in her heart. दो वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्त्री के बारे में कहते हैं और दोनों भी वचन एक बात को बताती हैं कि उसने बातों को अपने मन में ही रखा। My subject for this evening is what is in your heart. और आज की शाम जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं वो ये है कि आपके मन में या आपके हृदय में क्या है। What are you carrying in your heart? ऐसी कौन सी बात है जो आप अपने दिल में ही रख कर यहाँ पर आए। What is in your heart? Ask your neighbor what's in your heart. अपने पड़ोसी से पूछें कि तुम्हारे दिल में क्या है। क्या है, क्या है? देखो किसी ने जवाब नहीं दिया होगा क्योंकि आसान नहीं है। I think nobody might have answered because it is not simple. See, I thank God that Facebook will ask you what's on your mind. प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि फेसबुक आपसे पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में या तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। It doesn't ask you what's in your heart. और वो नहीं पूछता कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। If it ever asked, your whole Facebook wall is going to be messed up. क्योंकि अगर कभी भी अगर उस पे ऐसा पूछा गया तो आपका फेसबुक का जो वॉल है वो खराब हो जाएगा। Because there are some things in your heart you can't tell nobody. क्योंकि कुछ बातें आपके दिल में ऐसी होती हैं जिन्हें आप किसी और के साथ नहीं बांट सकते। You can't tell nobody what's going on in your heart. आप किसी को नहीं बता सकते कि आपके दिल में क्या चल रहा है। फिर भी कुछ लोग आते हैं और सामने पास्टर मेरे बारे में आप क्या सोचते हो? दिल से बताओ ना, दिल से। बेटा तुझे दिल से बताओ। But still people come in front of you and they'll ask, Pastor, what do you think about me? Come on, tell me. Open You your heart. really want to know दिल से? क्या तुम सच में दिल से जानना You चाहते हो? better get your noise cancellation headphone and put it before I tell you what I think about you. और इसके पहले कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं ये सुनना चाहते हो, अपने हेडफोन को, ईयर प्लस को, जो भी चाहिए ताकि आप तुम मुझे नहीं सुन पाओ वो तैयारी करके आ Because जाओ। there's something going on in our heart we can't share it with nobody else. क्योंकि कुछ बातें हमारे दिल में ऐसी होती हैं जिन्हें हम दूसरों से नहीं बांट सकते। God is interested in our heart. प्रभु जो है वो हमारे दिल में दिलचस्पी रखता है। People might be interested in your appearance, your exterior, your behavior and the way you present yourself, but God is interested in your heart. शायद से लोग जो हैं आपके बाहरी रूप को देखें, आप कैसे दिखते हैं, आपका चरित्र कैसा है, लेकिन परमेश्वर जो है उसकी दिलचस्पी आपके हृदय में है। What's going on in your heart right कि तुम्हारे दिल में अब इस वक्त क्या चल रहा है। What is going on in your heart? तुम्हारे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। If there would have been an X-ray or a detector which could trace things going on in our heart, can you imagine what would have been on the screen right now? और विचार करें अगर तुम्हारे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, अगर उसको जानने की अगर कोई मशीन होती, अगर उसको स्क्रीन पे दिखाया जाता तो अब क्या चल रहा होगा। For a man thinketh in his heart, so is he. क्योंकि जो मनुष्य अपने दिल में सोचता है वो वैसा ही है। As a man thinketh in his heart, so is he. जैसे विचार एक मनुष्य के हृदय में हो वो वैसा ही है। I thought that to think I need a mind or a brain, but when I read the Bible, I understood that I had to think from my heart. और मुझे लगा कि सही होने के लिए मुझे सिर्फ प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी, लेकिन मुझे समझ में आया बाइबल पढ़ने के बाद कि मेरा हृदय भी सही होना चाहिए। What is in your heart? जो भी वो है वो तुम्हारे दिल में है। What is in your heart? तुम्हारे दिल में क्या है आज? What's in your heart? क्या है तुम्हारे दिल में? Mary kept things in her heart. मरियम ने बातों को अपने मन में ही, अपने दिल में ही दबा कर रखा। What are we doing in this Christian walk of ours? और हमारे इस मसीह के साथ चलने के जीवन में हम क्या कर रहे हैं? Everything that we hear, we see, we have to talk. क्योंकि हर वो बात जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उसे बोलना जरूरी है। Have we ever treasured certain things in our heart? क्या आपने कभी अपने दिल में कुछ ऐसी बातें दबा कर छुपा कर रखी हैं? We have to talk and talk and talk and talk and talk and talk and talk. और हमें बोलना है, बोलना है, बोलना है और बोलना है। पास्टर मुझे आपसे 2 मिनट मिलना है, आ जाओ, कम।
क्या हुआ? पास्टर ब्ला 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 ब्ला। ये ऐसा, वो वैसी, इसने ऐसा किया, फलाने ने वो किया। मुझे ऐसा लगता है कहीं वो हमें अनिल कपूर वाली घड़ी मिल जाए मुझे, और मैं एक बार उस मिस्टर इंडिया की वॉच का बटन दबा दूं और गायब हो जाऊं इसके सामने से। I'm still searching for that. I don't know if somebody has a clue about that watch. पता है वो कहाँ है? नहीं। और मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं कि वो घड़ी मुझे कहां मिलेगी। अगर मिल वो जाएगी, घड़ी मैं दबाऊंगा काउंसलिंग के टाइम। पास्टर क्या मैं आपका 2 मिनट ले सकता हूं? आ जाओ। पता नहीं कौन से घड़ी में 2 मिनट गिनते वो लोग। पास्टर पता है क्या हुआ? बोलो सिस्टर, बोलो। ब्ला 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 ब्ला। इसका ट्रांसलेशन होता है? नहीं। That's all some people have. यही है कुछ लोगों के दिलों में, बस यही है। ब्ला 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 ब्ला। कुछ समय पहले I was a young preacher. और मैं कुछ समय पहले मैं एक जवान प्रचारक था। तो अभी I was young in my calling, just a 3-year-old preacher. और मैं अपनी बुलाहट में मैं जवान था, बस 3 ही साल हुए थे सेवा में। बुलाहट में जवान था। It's highlighted now. Amen. And I was preaching in an ashram. और मैं एक आश्रम में मैं प्रचार कर रहा था। And there were a couple of counselors, and on the Tuesday specifically, there was a day appointed for people to go for counseling. So counselors were called. और वहाँ पर कुछ काउंसलर्स थे, और मंगलवार के दिन जो है लोग काउंसलिंग के लिए आते थे, तो लोग वहाँ पर जाया करते थे। Somebody heard me preach, and backstage that man came and said, Pastor, मुझे आपसे 2 मिनट मिलना है। और कोई आया, उसने मुझे प्रचार करते हुए सुना, और उसने कहा कि पास्टर मुझे आपसे 2 मिनट मिलना है। Brother, एक काम करो, just go there. Counselors are sitting there. You can share your life. Go, go, go. और मैंने कहा कि आप एक काम करिए, वहाँ पर काउंसलर्स बैठे हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं, अपने जीवन को आप उनके साथ बांट सकते हैं। पास्टर सिर्फ मुझे आपसे बात करनी है ब्रदर, सिर्फ 2 मिनट दो। And pastor, I just want to talk to you, just give me 2 minutes. उधर जाओ, काउंसलर लोग हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। You can go there are counselors, you can go and talk to them. नहीं, मुझे सिर्फ 2 मिनट आपसे बात करनी है। No, I just want 2 minutes. बताओ। बोलो। ब्रदर वो 14 साल पहले, चुप रह, 14 साल की कहानी 2 मिनट में सुनाएगा? मेरे समझ में आया ये उनमें से एक कैरेक्टर है जिनसे बात करते करते दाढ़ी उग जाती है। The reason we have so much to share to the men of God is because we have nothing to share with God. और हमारे अंदर परमेश्वर के सेवक के साथ बांटने के लिए इतना कुछ भरा पड़ा रहता है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर के साथ बांटने के लिए कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है, परमेश्वर के साथ बांटने के लिए कोई जाता भी नहीं है। When was the last time you sat at the throne of grace? आखिरी बार कब था जब आप परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने? When was the last time you prayed? वो आखिरी बार कब था जब आपने प्रार्थना की? You ask people to bow down or kneel down in the church. अगर मैं कहूं यहाँ पे घुटने टेकते हैं या kneel down करें, आवाजें आएगी चारों बाजू से, खट खटक खटक खटक, क्योंकि कुछ लोगों के घुटने जमाना हो गया kneel down नहीं किया, खाली स्कूल में क्लास के बाहर करते थे हाथ ऊपर करके। That's why we have so much to share. इसलिए हमारे अंदर बहुत कुछ होता है जो हमें किसी ना किसी के साथ बांटना होता। Talk and talk and talk and talk and talk. बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। मैं तो पहले ही परेशान था, फेसबुक कॉलिंग चालू हो गया, पहले ही परेशान था और दुआ कर रहा था कि कब वो बंद हो जाए। ये व्हाट्सएप वालों को भी बुखार आ गया, व्हाट्सएप कॉलिंग।
बच नहीं सकते। मेरी माँ मुझे जब भी ऑनलाइन देखती है फोन करती है। मैंने उनको मैसेज डाला, मैं जब भी ऑनलाइन रहता हूं तू मुझे फोन मारती है व्हाट्सएप पे, इसलिए आज आई नहीं। देखो बुलाया था उनको। There are people who just want to share. कुछ लोग हैं जो अपने दिल की बात को बस बांटना चाहते They हैं, just want to talk. उन्हें सिर्फ बात करना है। They just want to tell you what he did and she did and what's going on there and this preacher and that ministry and this believer and blah. और उन्हें सिर्फ बात करना है कि इसने क्या किया, उस बहन ने क्या किया, इस सेवकाई में क्या चाले, उस पास्टर के साथ क्या हुआ, बस उन्हें सिर्फ बोलना है, बोलना है। The Bible says Mary treasured things in her heart. लेकिन बाइबल बताते हैं कि मरियम ने अपने दिल में बातों को दबा कर It रखा। doesn't say that she kept, it says she treasured. और ऐसा नहीं रखा, ऐसा नहीं कहा है कि उसने बस दबा कर भर कर रखा, नहीं, लेकिन उसने उन चीजों को संभाल कर रखा अपने हृदय में। You want to know where the real treasure is? Check your heart. और आप क्या अगर जानना चाहते हैं कि सच्चा जो धन है वो कहां पर है, तो आपके दिल में। There are some women in here, you have treasured certain things in your heart. Nobody even knows about it. और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने अपने हृदय में बहुत सारी बातें छुपा कर दबा कर रखी है और कोई भी उसे नहीं जान पाएगा। There are some men right here, you have treasured certain things in your heart and nobody even knows about और it. यहाँ पर कुछ पुरुष हैं जिन्होंने अपने दिल में ऐसी बातों को छुपा कर दबा कर रखा है और कभी भी कोई भी उसके बारे में नहीं जान पाएगा। Nobody knows who you really are. और कोई नहीं हकीकत में जानता है कि आप कौन हैं। Mary didn't go and share the divine purpose. मरियम ने जाकर वो जो उद्देश्य था प्रभु का किसी के साथ नहीं बांटा। She kept the secret to herself. उसने वो रहस्य जो है अपने लिए ही दबा कर She रखा। treasured things in her heart. उसने चीजों को अपने दिल में ही छुपा कर रखा। You know when you got to treasure things in your heart? आपको पता है कब आप ऐसी बातों को अपने दिल में छुपा When कर you रखते can't understand what's going on in your life. हैं? जब आप नहीं समझ पाते कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। You plan something for yourself and your life is nowhere compared to what you thought. और आप अपने जीवन में आप कुछ योजना बना रहे हैं, लेकिन जो आप योजना बना रहे हैं उसके तरह से आपका जीवन नहीं चल रहा। Mary thought something else. मरियम ने कुछ और सोचा। She was thinking about a different kind of a future with a husband called Joseph. और वो अपने पति के साथ जिसका नाम यूसुफ था उसके साथ कुछ और ही भविष्य की तैयारी कर रही थी। She was planning her wedding. वो अपनी शादी की तैयारी कर रही थी। She was preparing herself for the big day. वो अपने लिए उस बड़े दिन के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। She was selecting her wedding gowns. वो जो है जाकर अपनी वेडिंग गाउन या उसके जो वस्त्रों को तैयार कर रही थी। You know when a girl is excited to get married, you know और आप जानते हैं कि लड़की कितनी उत्साहित होती है शादी करने की। थोड़ा यहां से टाइट कर दो। Try that. Excited. उत्साहित होती है। Excited about her makeup, excited about her gown, excited about the hall, excited about the decoration, excited about her big day and her great future with this man called Joseph. और उसके कपड़े, उसका मेकअप, डेकोरेशन, हॉल, सारी बातों के लिए उत्साहित होती है और वो उत्साहित है उस अपने भविष्य के लिए जो इस व्यक्ति She यूसुफ के had साथ निकलने वाला है। planned something for her future with her human intellect. और उसने अपने मनुष्य के इंसान की समझ से उसने अपने भविष्य को जो है तैयार किया था। God said, knock, 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 knock. Wait a minute. और प्रभु आया, उसने खटखटाया और कहा कि That was your plan. वो Keep तो it तेरी aside. योजना थी, Keep it aside. उसे बाजू में रख दे। I got a plan for you. मेरे पास तेरे लिए You योजना, are going to be the child, mother of the Most High. और तू जो है संसार में जो सबसे श्रेष्ठ है तो उसकी माँ बनेगी। You are going to give birth to the Savior of mankind. और इस संसार के बचाने वाले को तू पैदा करेगी। You are going to give birth to Emmanuel. और तू इम्मानुएल को जनेगी। You are going to be God, the source of God, to come down to this earth. और तू वो जरिया बनेगी परमेश्वर के लिए ताकि परमेश्वर खुद इस पृथ्वी पर आए। You are going to carry the divine for 9 months in your womb. और वो जो सामर्थ्य अलौकिक है तो 9 महीने में अपने गर्भ में उसे संभाल कर रखेगी। You had a small plan, but let me tell you, you are going to be the mother of the Savior.
और तेरे पास तेरी जो योजना है बहुत ही छोटी सी है, लेकिन मैं तुझे बता दूं तो इस संसार के उद्धारकर्ता की मां बनेगी। You will give Jesus to the nations. और तू जो है यीशु मसीह का जरिया बनेगी ताकि वो संसार को छू सके। You had a plan for your life. तेरे पास तेरे जीवन के लिए एक योजना थी। You are sitting here, you who are sitting here, you have a plan for your life. और आप जो यहाँ पर बैठे हैं, आपने भी अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ योजना बनाई है। But God has a plan for your life which is much bigger, greater than yours. लेकिन परमेश्वर है जिसने आपके जीवन से एक योजना बनाई है जो आपकी योजना से, आपके समझ से कई बड़ी है। Mary was expecting something else. लेकिन मरियम किसी और बात की चाहत में थी। You know what? आप जानते हैं क्या? The angel said, you are highly favored. और स्वर्गदूत ने कहा कि तुझ पर बहुत बड़ी कृपा हुई है। And you expect a great miracle to happen. और तू एक बहुत ही बड़े चमत्कार की चाहत में है। What's this? You are highly favored. तुझ पर बहुत बड़ी कृपा दृष्टि हुई है। And here she becomes pregnant. और यहाँ पर जो है गर्भवती हो जाती है। Beginning of a problem. और सबसे बड़ी समस्या उसके जीवन। God declares favor upon her life. प्रभु उसके जीवन पर अपने अनुग्रह को कहता है। Beginning of a problem. और वहीं से उसकी समस्या शुरू हो जाती है। नहीं, कुछ लोग समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस वक्त। When God declares a favor upon your life, जब परमेश्वर आपके जीवन पर अपने कृपा को या अपने अनुग्रह को कहता है, there will be a great problem. तो एक समस्या जो है आपके जीवन में You didn't understand because you might have never been through that stuff. और आप शायद से नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप उस तरीके से कभी आप गए नहीं हैं अपने Your जीवन। greatest blessing will come after your greatest. और आपकी सबसे बड़ी आशीष जो है वो आपके सबसे बड़ी समस्या के बाद ही आएगी। He said, you are highly favored, Mary. उसने कहा कि तुझ पर सबसे ज्यादा प्रभु की कृपा दृष्टि हुई है You shall be pregnant. और तू गर्भवती होगी। आप समझे नहीं मेरी बात को? You didn't get me now. आपको नहीं समझा। This girl was a young little girl. और ये जो है बहुत ही जवान लड़की थी, Unmarried. जिसका विवाह नहीं हुआ And था। here it says, you're going to get pregnant. और यहाँ पर स्वर्गदूत कहता है कि तू गर्भवती होगी। Means people are going to stone her to death. इसका मतलब है कि लोग जो है पत्थर मार मार के उसे मार डालेंगे। Lord, I can't see favor in this situation. प्रभु इस परिस्थिति में मैं कहीं पे भी तेरी कृपा को नहीं देख रही। You said I'm highly favored, तूने तो कहा मुझ पर सबसे ज्यादा कृपा हुई, but I can't see favor anywhere. लेकिन मैं कहीं पे भी कृपा को नहीं देख रही। You said I'm highly favored, तूने कहा कि मुझ पर कृपा हुई, but Lord, my family members have turned against me. लेकिन मेरा जो पूरा परिवार है वो मेरे विरोध में आ गया। You said I'm highly favored, तूने कहा कि मुझ पर सबसे ज्यादा कृपा but my हुई, relatives don't like me. लेकिन मेरे लोग मुझे पसंद नहीं करते। You said I'm anointed, तूने कहा मेरा अभिषेक हुआ, but my office colleagues have isolated me, लेकिन मेरे ऑफिस के लोगों ने मुझे अकेला कर दिया, alienated me. उन्होंने मुझे छोड़ दिया। You say I'm highly favored, तूने कहा मुझ पर सबसे ज्यादा but कृपा nobody हुई, likes me. लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं करता। That's the plan of God. और यही प्रभु की योजना है। God will leave you with nobody in order to make you a somebody, and when you become somebody, you will be surrounded by everybody. और प्रभु आपको एक ऐसे दौर से लेकर जाएगा जहां पर आप अकेले हो, जहां पर आपके संग कोई नहीं हो, ताकि जब आपको प्रभु कुछ बना दे तो आपके आजू बाजू हर कोई हो। God wants to make you something. प्रभु आपको कुछ बनाना चाहता If है। at this moment you feel lonely, nobody is for you, nobody stands for you, God is up to something in your life. और अगर आज आप यहाँ पर बैठे हैं और आप अपने आप को अकेला पाते हैं, आपको लगता है कि कोई मेरे संग नहीं है, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं होता, तो प्रभु का धन्यवाद दें क्योंकि प्रभु आपके जीवन से कुछ कर रहा है। When he spoke to Mary, he spoke privately. When he spoke to Moses, he spoke privately. When he spoke to Jacob, he spoke privately. और जब कभी भी प्रभु ने मरियम से बात की, उसने अकेले की, याकूब से की अकेले की, और मूसा से की अकेले की। When there are too many people around you, you can't hear God's voice. क्योंकि जब आपके आसपास कई सारे लोग होंगे तो आप प्रभु की आवाज को नहीं You सुन know पाएंगे। why you feel alone now? आपको लगता है, आपको पता है आप अकेले क्यों हैं? Your daddy wants to have a private meeting with you. क्योंकि आपका जो पिता है वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। Somebody shout, Daddy loves me. कोई तो कहे पिता मुझसे प्रेम करता है। He wants to have a private time with you. वो आपके साथ अकेले समय बिताना चाहता है। Yeah, you see, you call somebody, they reject your phone call. आप देखिए कई बार आप शायद किसी को आपने कॉल लगाया होगा और उसने आपके फोन को रिजेक्ट कर They दिया, don't reply your text. वो आपके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करते, They ignore you.
और वो आपको बस आप पे ध्यान नहीं लगा। You feel lonely, but let me tell you, God wants to have a private moment with you. आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ अकेले समय बिताना चाहता Now है। watch this. Mary was told she is highly favored, and here begins a problem. अब देखिए यहाँ पर प्रभु ने उससे, पवित्र आत्मा ने उससे कहा या स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तुझ पर सबसे ज्यादा कृपा हुई है, और वहीं पर उसकी समस्या की शुरुआत। She didn't understand what's going on inside of her, वो नहीं समझ पाई कि उसके अंदर क्या चल रहा है, but she kept it in her heart. लेकिन उसने उसे अपने दिल में ही दबा कर रखा। How can Emmanuel be born through me? इमैनुअल मुझसे कैसे जनेगा? Weak and fragile that I am, how can the Son of God be born through me? और कई बार ऐसा ही होता है, हम सोचते हैं मैं इतना कमजोर हूं, मुझसे कैसे ये हो सकता है, या प्रभु की संतान मुझसे कैसे पैदा हो सकता है? Lord, I'm a nobody, but how can I preach the gospel? प्रभु मैं कोई भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं तेरा सुसमाचार कैसे बांटूं? Lord, I'm not that well qualified. Why did you select me for your kingdom? प्रभु मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, लेकिन तूने अपने राज्य के लिए मुझे क्यों चुना? But God says, मुझे यही चाहिए. I want you. लेकिन प्रभु कहता मुझे तू ही चाहिए, You are the right candidate. और आप ही वो सही व्यक्ति हैं, You are the right one for God. और प्रभु के लिए आप ही सही व्यक्ति हैं। Yes. Impossible is nothing. असंभव कुछ नहीं है उसके साथ। Amen. Amen. You are the one whom God wants to use for his kingdom. और आप ही वो हैं जिसका इस्तेमाल परमेश्वर अपने राज्य के लिए Mary करना didn't चाहता understand, but she kept things in her heart. है। मरियम को बातें समझ में नहीं आई, लेकिन उसने अपने दिल में उसे संभाल कर रखा। She treasured it in her heart. उसने उसे अपने जीवन में, अपने दिल में संभाल कर रखा। Every day, every night, she cherished the baby in her womb. और हर दिन हर रात को उस बच्चे को उसने अपने गर्भ में संभाल कर And रखा। here comes a time of labor pain. और अब समय आता है जब उसे उस बच्चे को जन्म देना है, And she had to flee with the husband on a donkey. और एक गधे पर बैठकर अपने पति के संग उसे कहीं और भागना पड़ा। She knocks every door, little bit of space for the Son of God to be born. और हर दरवाजे पर जाकर वो खटखटाई, उसने कहा कि परमेश्वर के संतान को पैदा करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। Nobody entertained her. और किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। She didn't understand, but she kept it in her heart. उसे समझ में नहीं आया, लेकिन उस बात को उसने अपने हृदय में, अपने दिल में संभाल कर रखा। Nobody opened the door for God to be born. और किसी ने भी अपने दरवाजों को नहीं खोला ताकि परमेश्वर का पुत्र जो है इस संसार में पैदा हो। She kept things in her heart. लेकिन उसने उस बात को अपने दिल में She दबा didn't कर understand, but she kept things in her heart. उसे चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन उसने अपने हृदय में उसे संभाल कर रखा। Because she knew that if man closes doors, God will open the biggest door for me. क्योंकि वो जानती थी कि अगर लोग मेरे लिए दरवाजे बंद कर दें तो परमेश्वर है जो मेरे लिए सबसे बड़ा दरवाजा खोल सकता। And I speak a prophecy over somebody's life right here. और यहीं पर मैं एक भविष्यवाणी देखता हूं किसी के जीवन की। Isaiah 60 verse 11, God says, I'm going to open the gates continually over your life. यशायाह 60:11 में परमेश्वर कहता है कि मैं निरंतर तेरे लिए दरवाजों को खोलता रहूंगा। There wasn't a gate. I'm going to open the gates. No more doors. I'm going to open gates for you. अब दरवाजे नहीं, लेकिन मैं तेरे लिए गेट खोलूंगा। I'm going to open gates for you. तेरे लिए गेट खोलूंगा। Because a door will only lead you to a room, but a gate will lead you to the palace. क्योंकि दरवाजा जो है वो सिर्फ आपको एक कमरे तक लेकर जा सकता है, लेकिन एक गेट जो है वो आपको महल की ओर लेकर God जाएगा। is opening gates of finances, blessings, good news, testimony, love in your life. प्रभु कई बातों के लिए गेट खोल रहा है, गवाहियों के लिए, प्रेम के लिए, आर्थिक बातों के लिए, आपके लिए परमेश्वर गेट्स खोल रहा है। If you're doing ministry, souls are going to pour in. और अगर आप सेवकाई में हैं तो कई आत्माएं आएंगी। Let me repeat that. I don't know whom I'm talking to. I said, if you're doing ministry, new souls are going to come in through that gate. मैं फिर से कहना चाहूंगा, मैं नहीं जानता किससे बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप सेवकाई में हैं तो परमेश्वर गेट खोलेगा ताकि कई सारी आत्माएं If you're doing business, new connections are going to pour in. अगर आप बिजनेस करते हैं तो नए लोग आपके रिश्ते में आएंगे, संबंध में Finances are going to come in. पैसे आएंगे, Miracles are going to come in. चमत्कार आएंगे In Jesus' name. यीशु के नाम में। She knew that God is going to open a gate. वो जानती थी कि परमेश्वर उसके लिए गेट खोलेगा। She had no place to go. उसके पास कोई जगह नहीं थी जाने की, Walking in the desert day and night और दिन रात वो रेगिस्तान में ही चली जा रही है to find a little place for the child to be born. ताकि उसे एक छोटी सी जगह मिल जाए जहां पर वो अपने बच्चे को जन्म दे सके। She couldn't get down from the donkey वो गधे से खुद नहीं उतर सकती थी because the sand was too hot. It would burn her feet. क्योंकि रेत शायद से बहुत गर्म होगी, शायद उसके पैर जल जाए। She couldn't sit on the donkey. It used to hurt her back. कि वो गधे पर नहीं बैठ पा रही थी क्योंकि उसके पीठ में दर्द दे रहा था। She was traveling
a painful journey. और एक बहुत ही दर्द से भरी हुई जर्नी पर या सफर पर वो थी। She was going through pain. दर्द को लेकर चल रही थी वो। Couldn't sit on the donkey, hurting back. गधे पर नहीं बैठ सकती थी क्योंकि उसकी पीठ में दर्द है। Couldn't get down because the sand was too hot. It would burn her feet. उतर भी नहीं पाएगी क्योंकि रेत गर्म है और उसके पैर जल जाए। Pregnant lady sitting on a donkey. गर्भवती औरत एक गधे पर बैठी है, She cannot get down. वो नीचे भी नहीं उतर सकती, It's burning. जल रहा है। But she told herself, लेकिन उसने अपने आप से एक बात कही, I know somebody's going through this situation. You got no peace in the house. When you go out, you feel out of place. You are not happy inside the house, outside the house, in that job. If you don't have a job, you're still not happy. Somebody is in an unhappy situation. मैं जानता हूं यहां पर कोई है जो अपने घर में भी खुश नहीं है, जब बाहर आ रहा है खुश नहीं है, काम की जगह पर खुश नहीं है। अगर आपको काम नहीं है तो आप उस बात से आप खुश नहीं है। कोई तो यहां पर है जो है अपने जीवन में ऐसे मौके पर है जहां पर उसके जीवन में खुशी नहीं है। You're not happy in it. You're not happy out of it. आप उसमें रहकर भी खुश नहीं है और उसके बाहर आकर भी आप खुश नहीं। नहीं आप समझे नहीं कोई तो समझ नहीं रहा है। आप शायद इस परिस्थिति से गुजरे नहीं हो। You have not gone through this. You are not happy in it. You are not happy out of it. शायद आप में से कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप इसमें से होकर नहीं गुजरे। कई लोग हैं जो ना तो उसमें रहकर खुश हैं ना उसमें बाहर आकर खुश हैं। उसके साथ रहना भी मुश्किल है, उसके बगैर रहना भी मुश्किल। हाँ, अब कुछ लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। वो साथ में है तो झगड़े करते हैं और 4 दिन बात नहीं करते तो आई मिस यू। चाहिए क्या? You're not happy in that office. If you don't have a job, you're still depressed. और आप ऑफिस में जहां पर आप काम करते हैं आप वहां पर खुश नहीं हो रहे, लेकिन अगर आपके पास काम नहीं हो फिर भी आप निराश ही हैं। You're not happy on the donkey. You're not happy walking on the ground. और आप गधे पर भी खुश नहीं हैं और जमीन पर आपको चलने में भी खुशी नहीं। Some people are never happy. कुछ लोग कभी भी खुश नहीं होते। You give them anything, they will never be happy. आप उन्हें कुछ भी क्यों नहीं दे दें वो कभी भी खुश नहीं होंगे। शादी में जाते क्या था, खाना कैसा था, क्या आइसक्रीम तो था ही नहीं। कुछ भी दो इन लोगों को, they will never be happy. चाहे आप उन्हें कुछ भी देने की कोशिश करो वो कभी भी खुश नहीं होंगे। ऐसे लोगों को गिफ्ट देते समय सोचना पड़ता है इसके लिए क्या लूं, क्योंकि आप कुछ भी लेके दो ये कभी खुश नहीं। क्या खाली मर्सिडीज ही तो दिया है? There are some people कुछ लोग होते हैं ऐसे, always unhappy. हमेशा दुखी। Always they will never compliment you. अपनी बीवी को कभी नहीं बोलेंगे आज खाना अच्छा था, ये नमक क्यों ऐसा डाला। फिर वो अंदर से बोलेगी खाना है तो खा। Not happy on the donkey. गधे पर भी खुश नहीं है Not happy on the ground. और जमीन पर भी खुश नहीं। But Mary knew to keep things in her heart. लेकिन मरियम ने सारी बातों को अपने मन में दबाकर छुपा कर रखा, She संभाल कर रखा। she preserved it in her heart. उसने अपने हृदय में उसे संभाल कर रखा। She didn't knew where she was going, but she knew who was inside of her. वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो जानती थी कि उसके अंदर कौन है। Somebody didn't get what I said. I said she didn't knew the way, but she knew the destiny. मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया। वो रास्ता नहीं जानती थी लेकिन वो जानती थी कि वो कहाँ पहुँचने वाली है। आप समझे नहीं मेरी बात को। अगर आप समझे नहीं, मैं और मेरा एक इज़राइल का लीडर, हम लोग दोनों गाड़ी में जा रहे थे। जब जेरूसलम से वापस आ रहे थे, we lost our way, हम लोग रास्ता भटक गए। एंड मैंने सिर्फ उसको इतना ही कहा, चलाते रहे, क्योंकि सही आदमी के साथ गलत रास्ते पे रहोगे तो भी मंजिल सही मिलनी है। और जैसा मेरा डायलॉग बोल के खत्म हो गया, रोड टू तेल अवीव का बोर्ड आ गया। आप समझे नहीं मेरी बात। अगर यीशु मेरे अंदर है और मुझे नहीं पता मैं रास्ते में कहाँ हूँ इस वक्त, मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मेरे अंदर जो है वो मेरी मंजिल है। I don't care. मुझे फर्क नहीं पड़ता। As long as God is on my side, I don't care on which side I am. जब तक प्रभु मेरी ओर है तब तक मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी ओर। I don't care if I'm on the right side or the left side, because God is on my side. मैं चाहे दाहिनी ओर हूँ या बाईं ओर हूँ, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। But Mary kept things
inside of her. लेकिन मरियम ने बातों को, चीजों को अपने हृदय में संभाल कर रखा. And she got a small little place and she gave birth to that child, baby Jesus. और उसे एक छोटी सी जगह मिली जहां पर उसने उस बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम यीशु था. The Savior of the world wrapped up in rags in a manger. और दुनिया को छुटकारा देने वाला परमेश्वर एक चरनी में और चिंधियों से जिसे लपेटा गया. Mary could not understand how can this be the Messiah for the whole world. और शायद से मरियम को समझ में नहीं आता होगी ये कैसे संसार को बचाएगा, ये संसार का मसीहा कैसे हो सकता. But she kept things in her heart. लेकिन उसने चीजों को अपने हृदय में संभाल कर रखा. And this boy growing up, और जो लड़का है अब बढ़ रहा है. और 12 साल का हो जाता है. Now he's 12 years. अब वो 12 साल का हो गया है. And all of a sudden you don't know where he is one fine day. और अचानक से एक दिन आप देख रहे हैं वो कहीं पे भी नहीं. Mary couldn't understand. मरियम को समझ में नहीं आ रहा था. She kept it in her heart. उसने उस बात को अपने हृदय में दबा कर रखा. She started searching for her. वो खोजने लगी उसे. And on the third day she found him. और तीसरे दिन उसे वो मिल गया. It's a prophecy for somebody. Whatever you have lost, it's going to be recovered in Jesus' name. अरे भविष्यवाणी है आप में से किसी के लिए, जो भी बात आपने खोई है वो आप उसे फिर से आप पाएंगे. She found him on the third day. तीसरे दिन उसे उसका She बेटा couldn't मिला. understand. वो नहीं समझ पा रही. He came with her and was submissive and obedient to her, the Bible says. और बाइबल बताती है कि वो अपनी माँ के प्रति उसकी आज्ञा मानता था, उसकी बातें सुनता था, लेकिन कहाँ गया. She didn't understand anything. उसे नहीं समझ में आ रहा था. But she kept it in her heart. उसने उस बात को अपने हृदय में दबा कर रखा. And this boy was growing in the house. और ये जो लड़का है घर में बढ़ रहा है. She had no clue. This man looks normal. और उसे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये जो लड़का जो है बहुत ही आम लगता है. This boy feels hungry. This boy sleeps. This boy wakes up. This guy gets tired. How can he be the savior of mankind? इसे भूख लगती है, ये सोता है, ये थक जाता है, ये कैसे इस संसार को बचा सकता है. She didn't have a clue. और उसे कोई अंदेशा नहीं था. But she kept things in her heart. लेकिन उसने चीजों को अपने हृदय में संभाल कर रखा. You don't know what I'm talking about. शायद से आप नहीं जानते आज मैं क्या कह रहा हूँ. I'm just trying to tell you, even if you don't understand what's going on in your life right now, just preserve it in your heart. मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ कि शायद से आपको नहीं समझ में आता हो कि आपके जीवन में इस वक्त चल क्या रहा है, लेकिन उन बातों को आप अपने हृदय में संभाल कर रखें. Your life might not make sense right now, but just keep it in your heart. One day it's going to be a testimony. शायद से आपको आपके जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है आपको नहीं समझ में आए, लेकिन उन चीजों को अपने हृदय में संभाल कर रखें क्योंकि यही जो है आपकी गवाही That same होगी. husband of yours who speaks against your belief, those same children who are against you right now, are one day going to come in the house of God, stand here and be used for the glory of Jesus Christ. और वही पति जो आपके विश्वास के विरोध में बोलता है, वही बच्चे जो आपके संग नहीं है, वही यहाँ पर आएंगे, प्रभु के भवन में खड़े होंगे और प्रभु की सेवा करेंगे. God is going to flip your story. प्रभु जो है आपकी कहानी को पलट देगा. He's going to reverse everything. सारी बातों को वो पलट देगा. I'm telling you, by the end of 2016, you're going to come out of it bold and powerful, and you're going to stand up and give your testimony in front of those people who thought that you will go down, and God still lifted you up high. और 2016 खत्म होने के पहले मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा उन लोगों के सामने भी जिन्होंने ये सोचा कि आप गिर जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़े, लेकिन परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करेगा और आप यहां पर खड़े होकर सभी के सामने अपनी गवाही. ठीक उन्हीं लोगों के सामने आपको ऊंचा उठा के खड़ा करेगा और उन लोगों को तुम्हारे लिए तालियां बजानी होगी. Yes. She said, I'm not going to quit. उसने कहा कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी. I don't understand what God is up to, but I'm not going to quit. शायद मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी. There are some people sitting here right now. यहाँ पर भी अब आज ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं. Don't try to fool me. The day you accepted Christ, everything started falling apart in your life. और मुझे नहीं बताइए क्योंकि जिस दिन आपने परमेश्वर का स्वीकार किया सारी चीजें यहाँ वहां होने लगी. नहीं 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 नहीं, हम लोग दिखाते हैं अच्छा साइड, हमारे मसीही जीवन का जो अच्छा साइड है उसको हम दिखाते थे. हमारे गवाहियां भी एडिट होकर के स्टेज पे देते हैं हम लोग. लेकिन कुछ लोग ऐसे यहाँ बैठे हैं, जिस दिन आपने मसीहा को स्वीकारा आपके जीवन में सब कुछ ऊपर नीचे हो गया आपके लाइफ में.
ओह नो नो नो, मैं गलत लोगों से प्रचार कर रहा हूं। है क्या कोई यहां पे? है क्या कोई यहां पे? अपनों ने ठुकरा दिया, रिश्तेदारों ने बात करना छोड़ दिया, घर वाले तुम्हारे खिलाफ हो गए, तुम्हारा बाइबल उठा के फेंक दिया, तुम्हें तरह तरह के नाम दिए गए, तुम्हें पागल करार दिया। जिस दिन तुमने मसीहा को स्वीकारा, सब कुछ बसड़ हो गया। Am I right about it? क्या मैं सही कह रहा हूं? But you kept things in your heart. लेकिन आपने फिर भी अपनी इन सारी बातों को अपने दिल में रखा। You don't tell that to nobody. आपने जाकर किसी से नहीं कहा होगा। Every time you give a testimony, you give the brighter side of it. आप हमेशा जब भी गवाही देते हैं तो जो अच्छा जो भाग है आप वही You बताते tell about what you got, but you don't tell how you got it. हैं। आप वो बताते हैं कि आपको क्या मिला है, लेकिन आप वो नहीं कभी बताते कि कैसे आपको मिला। You edit it. कैची मार के गवाहियां देते हैं हम लोग। अगर हमारी असली गवाही कोई सुने कि हम लोग आए कहां से है, पसीना छूट जाए पब्लिक का। लेकिन हम लोग कौन सी गवाही देते हैं? पूरा लाली लिपस्टिक लगाकर। हमारी असली गवाही कहीं रह गई पीछे। We don't tell nobody the journey of our life. हम हमारे जीवन के उस सफर को या उस बातों को हम किसी को नहीं बताते। You know what? You know why? You know why people judge your breakthrough? Because they don't know you've been through. क्या आपको पता है लोग आपके विजय के बारे में क्यों न्याय करते हैं? क्योंकि वो नहीं जानते कि आपने जो वो विजय पाई है किस हालातों से पाई। I need to repeat that again. मैं फिर से ये बताना चाहूंगा। People judge your breakthrough because they don't know what you have been through. लोग आपके विजय का न्याय करते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि आप किन हालातों से होकर गुजरे हैं। But Mary kept these things in her heart. लेकिन उसने उन सारी बातों को अपने दिल में छुपा कर रखा। On the third day, she found और Jesus. तीसरे दिन उसे यीशु मसीह मिले And they bring Jesus back. और वो यीशु मसीह को फिर से लेकर आए। She didn't understand what's going on. उसे नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है। She preserved it in her. उसने उस बातों को अपने दिल में रखा। The child was growing in the house. और जो बच्चा है वो घर में बढ़ रहा है। And all of a sudden, one fine day, और अचानक एक दिन somebody comes running कोई दौड़ कर आता है। and says, your son did this and your son did that. कोई आता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे ने कुछ ऐसा कर दिया, वो कर दिया। And one fine day, और एक दिन they invite her for a wedding. एक विवाह में उसे बुलाया जाता है She takes her son along with her. और उसका बेटा भी उसके संग जाता है। And then they find out that the wine is over. और उस दिन उन्हें पता चलता है कि दाखरस जो है वो खत्म हो गया है। And Mary comes there. और मरियम वहां पर आती है। She calls her son. वो अपने बेटे को बुलाती है And she says, the wine is over. और वो आती है और कहती है कि दाखरस जो है खत्म हो गया। You didn't get my point. आपको समझ में नहीं आया है। Everybody else in that wedding was busy looking at the decoration and the dressing and everything else, but Mary looked at what was not there. और हर कोई वहां पर व्यस्त था देखने के लिए कि सारी बातें सही चलें, लेकिन मरियम ने देखा कि वहां पर क्या नहीं था। हर एक लोग बिजी थे देखने में सारी चीजें को जो थी, लेकिन मरियम ने वो चीज देखी जहां पे कमी थी। सिर्फ एक माँ आके तुम्हारे जीवन में तुम्हारी कमी बता सकती है। She was a mother. एक माँ थी वो। And everybody else was praising you. Your mother said, hey, इधर आ, और जब सब आपकी बढ़ाई कर रहे थे तो आपकी माँ ने आपसे कहा इधर आओ। इधर आ, काट दे बाल। Tweet this, Benji. Hallelujah. You want to know some honest answers? और आप कुछ सच्चे जवाब अगर चाहते हैं, Ask your mother how you look. अपनी माँ से पूछा आप कैसे दिखते हैं। Everybody will say, oh, everybody, how pretty. Oh, but ask your mama. सब कहेंगे अरे वाह बहुत खूबसूरत है, कि अपनी माँ से जाकर पूछा। Mary looked at what wasn't there. मरियम ने उस चीज को देखा जो नहीं थी। She saw that there was no wine. उसने उसे पता चला कि वहां पर दाखरस खत्म हो चुका। Let everybody be busy looking at the lightings and the decoration and every other stuff, but I'll take care of stuff which is lacking. और उसने सोचा कि ये जो लाइटिंग है और ये सारी बातें जो है लोगों को उस पर ध्यान देने दो, लेकिन उस बात पर ध्यान दूंगी। And now watch this. She went to her son, nobody else. She went to her son.
और वो गई अपने बेटे के पास, और किसी के पास नहीं लेकिन अपने बेटे के पास। She said, do something about this because I know only you can do something about उसने this. कहा कि इस चीज के बारे में कुछ करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सिर्फ तुम ही इसे कर तुम ही कुछ कर सकते हो। एक माँ ने अपने बेटे को प्रोत्साहन दिया कि बेटा तू कर सकता है। उसने ये नहीं बोला तू नालायक है, तू किसी काम के नहीं है। एक माँ ने अपने बेटे को बोला मैं जानती हूं कि तुझ में वो क्षमता है कि तू कुछ कर सकता है। This is for parents. You need to encourage your children. और हर माँ बाप को अपने 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 बच्चों को उत्साहित करना चाहिए। You got to tell your son, you got to tell your daughter, you can do it. अपने बेटे अपने बेटी से कहना चाहिए कि तुम कर सकते हो। Yes, you can. You are a champion. हाँ, तुम कर सकते हो क्योंकि तुम विजयी हो। Call your child a champion. अपने बेटे को अपने They बेटी को can do चैंपियन it. कहें, उससे कहें कि तुम You कर don't सकते हो। put them down. You don't tell them that you are good for nothing. You got to tell them you can do it. और उन्हें नीचे नहीं गिरा, ये नहीं कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूरी है माँ बाप होने के नाते कि तुम मुझसे कहो कि तुम कर सकते And हो। Jesus showed up who he was. और फिर यीशु मसीह ने वहां पर दर्शाया, ये बताया वो कौन थे, Converted the water into wine. और उन्हें वहां पर उस पानी को जो है दाखरस में बदल दिया। उस बेरंग पानी को दाखरस में बदल दिया। किसी के लिए भविष्यवाणी है, तुम्हारी बेरंग जिंदगी में खुदा रंग भरने वाला है। Everything is going to be colorful now. सारी बातें परमेश्वर सही कर देगा, रंग God is बिरंगी going to कर- make sense out of your life. परमेश्वर He's going to make sense. और आपके जीवन में जो चीजें हैं सही होने वाली। एक मतलब आएगा, आपके जीवन का एक मकसद आएगा। इस तरह फिजूल नहीं जियोगे आप। Something is going to happen to your life. कुछ तो आपके जीवन से होने वाला है। You don't think कि आप ऐसे ही आए हो यहाँ पे। आप ऐसे ही नहीं आए हो यहाँ पे। आप अगर यहाँ आए हो, मैंने पिछली बार भी कहा, कोई भी आग में हाथ डाले बगैर जले वापस जा नहीं सकता। ओह, किससे बात कर रहा हूँ यार, अब लो है कि नहीं मेरे साथ यार। मैंने कहा कोई भी आग में हाथ डाले और जले बगैर वापस नहीं जा सकता। If you are here, you don't know why you are here. Some people think saturate. Now I came, I sat. Now I'm looking at you, and now I'll give you rate 20 out of 16. कुछ लोगों को लगता है कि वो सैचुरेट में ऐसे हैं, 60 मतलब बैठ जाओ, मैंने तुम्हें देखा और अब मैं तुम्हें रेटिंग दूंगा। कुछ लोग अपना रिपोर्ट, मेरा रिपोर्ट कार्ड लेके बैठे हैं। प्रीचिंग 10 में से 1.5 मार्क ठीक है, ड्रेसिंग का तो 0। रेट कर रहे बैठ के। हालेलुया। एक जमाना था कि यहां से सिखाया जाता था, वहां सीखते थे लोग। अभी यहाँ वालों को सिखाते हैं, उसने क्या पहनना है, कैसे रहना है, कितना बोलना है, कैसा प्रचार करना है। ये उल्टा है। गुस्सा आया है। हालेलुया। Mary kept things in her heart. मरियम ने चीजों को अपने हृदय में संभाल कर रखा। रोजाना एक माँ घर में बैठ करके अच्छी अच्छी बातें सुन रही है अपने बेटे के बारे में। Say that. And every day a mother is at her house and she's getting to listen good things about her son. Every day she's sitting at home and somebody comes up and says, you know what your son did today? He walked on water. और कोई आता है कहता है कि पता है तुम्हारे बेटे ने आज क्या किया, वो पानी पर चला। You know what your son did today? He raised the और dead. पता है तुम्हारे बेटे ने आज क्या किया, एक मरे हुए व्यक्ति को फिर से जीवित कर दिया। You know what your son, and Mary could not understand, but she kept things in her heart. और लोग आके कहते पता है तुम्हारे बेटे ने क्या किया। मरियम को नहीं समझ में आता था, लेकिन चीजों को अपने हृदय में वो संभाल कर रखती। You know what your son did today? Thousands of people were hungry and Jesus took the 5 loaves and 2 fishes and boom, here he fed thousands of people. और किसी ने उससे कहा होगा कि क्या तुझे पता है तेरे बेटे ने क्या किया, सिर्फ 2 मछली 5 रोटी में उसने हजारों को खिलाया। That's your son, Mary, that's your son. And Mary was like, collar tight. और लोग आके कहने लगे कि तेरा बेटा है, तेरा बेटा है। और मरियम शायद से उसका कॉलर टाइट हो गया हो। कितना मजा आता है माँ लोगों को बेटों की तारीफें सुनने में। ओ हालेलुया। मेरी माँ को मैं जहां भी लेके जाता हूं तो कुछ लोग तारीफ करते हैं। Wherever I take my mother, there are some people who appreciate. And I look at my mother. और मैं अपनी माँ को देखता हूँ। मुझे याद आता है ये वही है जो ओपन डे के दिन सुनती थी।
मुझे ओपन डे से उतना डर लगता है जितना किसी बेवड़े को ड्राई डे से भी नहीं लगता। आप नहीं जानते मेरे स्कूल का सफर दोस्तों, नहीं जानते। मैं और पास्टर सुबी एक ही स्कूल के हैं वैसे। या वेर आर यू सर? या हम लोग होली फैमिली के थे और मुझे होली फैमिली ने कहा ये होली फैमिली है, इस होली फैमिली में तेरा कोई काम नहीं है, तू इतना अनहोली है कि तुझे क्लास के बाहर जाना पड़ेगा। जब भी मुझे टीचर कुछ बोलती थी मैं मिस को बोलता था, मिस। 1 साल के स्कूल में 3 महीने की छुट्टी, बचे 9 महीने। उसके अंदर के 2 महीने मैं क्लासरूम के बाहर नील डाउन करता हूँ, बचे 7 महीने। उसके 3 महीने बेंच के ऊपर खड़ा, हाथ ऊपर। एक 2-4 महीने में अंदर रहता हूं, उसमें तो रिस्पेक्ट से बात कर। गेट आउट ऑफ द क्लास रॉबिन। इतनी रिस्पेक्ट थी मेरी होली फैमिली में। हालेलुया। होली फैमिली। हाई स्कूल। कौन सा स्कूल? Amen. And मैं इतना परेशान होता। I was like every open day जब 9 बजे स्कूल पहुंचना पड़ता था, 8:45 बजे आँख खोलने की एक्टिंग करने का, क्योंकि जाना नहीं है। गालियां सुनाने के लिए अपनी माँ को। लेकिन एक बार मुझे याद है 9th स्टैंडर्ड में, just one day before the open day, मेरी टीचर ने मुझसे कहा, my teacher told me, wow, you have improved. और मेरे टीचर ने एक दिन ओपन डे के पहले मुझसे कहा, अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे हो गए हो, सुधर गए हो। मैंने पीछे देखा, ये yes Robin, I'm talking to you, you have improved. हाँ रॉबिन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुधर गए हो, अच्छे हो गए हो। सुना कह रहे? और दूसरे दिन ओपन डे है, द नेक्स्ट डे। पहली बार मैं सुबह 6:30 बजे उठ के रेडी हुआ हूं कि आज मुझे लेके जाना है अपनी मां को, कुछ अच्छा सुनने मिलेगा। और सबसे पहले मैं खड़ा हूं, विक्टोरिया मिस जो अभी ऑफ हो गई, यू मस्ट बी नोइंग, उन्होंने ये गेम खेला मेरे साथ। And I introduced, I said, Miss, my mother. Said, she's your mother? I said, yes. और मैं गया और मैंने कहा कि टीचर ये मेरी माँ है। उसने पूछा कि तुम्हारी माँ है? मैं बोला पूरे रास्ते मैंने अपनी माँ को प्रिपेयर किया, आज सुनेगा तू अपने बेटे के। टीचर ने मुझसे कहा that I'm improved और फलाना and मिस ने कहा your mother? I said yes. This Robin, endless trouble in the classroom. और उसने पूछा कि तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बेटा? मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि ये रॉबिन बहुत परेशान करता है क्लास में, कभी खत्म नहीं होती इसकी परेशानी। बस उसी दिन से जो धोखे की छुरी मेरे सीने में जा चुकी, ये हाल है मेरा आज। मेरा भाई एक क्लास ऊपर पढ़ता था 10th से। मैं भाई से पूछा ये ऐसा क्यों किया टीचर ने? वो बोली अगर पहले बताया होता तू माँ को लेके नहीं जाता, तू हर साल डुप्लीकेट माँ लेके जाता। ये तारीफ सुनाने के लिए ओरिजिनल लेके गया। You know one thing? क्या आप एक बात जानते हैं? I want to ask the sons and daughters here. यहाँ पर जो बेटे और बेटियां हैं, मैं आपसे पूछना चाहता क्या हूँ, आपकी वजह से आपके माता पिता का सिर कितनी बार ऐसे जलील हुआ होगा? तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे एरिया में कितनी बार तुम्हारी माँ को सिर झुकाना पड़ा?
खाना मिलता है, वो फिर भी बनाती है, वो फिर भी कपड़े धोती है, वो फिर भी तुम्हारे सब काम करेगी, लेकिन हमने उनको जलील किया है। पता है वो सारी चीजें कहाँ है? You know where she has treasured them up? There is a lot in her heart. There is a lot in her heart. There's a lot in her heart. She can't tell nobody, she can't share it with nobody, but she has preserved everything in her heart. किसी से कह नहीं सकती, किसी को बता नहीं सकती, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उसने मेरे हृदय में छुपा कर रखी। Mary, your son gave sight to the blind. Mary, look at your son. मरियम, तेरे बेटे ने अंधे को आंख दी है, देख अपने बेटे को। Mary, he calmed the storm, the winds and the waves. What kind of son do you have? और मरियम, उसने तूफान को रोक दिया। कैसा बेटा है ये तेरा? Mary, your son cleansed the leper. मरियम, तेरे बेटे ने एक कोढ़ी को शुद्ध कर दिया। Mary, your son is awesome. Today, you won't believe me. Lazarus walked out of the grave because your son called him out. और किसी ने जाकर उससे कहा होगा कि क्योंकि तेरे बेटे ने पुकारा, लाजरस जो मरा हुआ था वो अपने कब्र से बाहर आया। And Mary is happy about it. She couldn't understand, but she kept it in her heart. और मरियम खुश हुई, लेकिन उससे समझ में नहीं आया होगा शायद, लेकिन उसने सारी बातों को अपने मन में रखा। And after this, all of a sudden, one fine day, और अचानक से एक दिन, Mary, मरियम, your son is arrested. तेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया। वो गिरफ्तार हो चुका है। Your son is arrested. तेरा बेटा गिरफ्तार हुआ है। And his disciples have left him. और उसके जितने भी चेले थे उसे छोड़कर चले गए। What must have happened to a mother when she heard that? और एक माँ को कैसा लगा होगा जब उसने सुना हो? She kept it in her heart. लेकिन उसने उस बात को अपने मन में ही रखा। They arrested Jesus. उन्होंने यीशु मसीह को बंदी बना लिया। Took him. वो उसे लेकर गए। They took him. उसे लेकर गए हैं। Stripped him. Stripped him of his clothes. और उसके कपड़े उन्होंने फाड़ दिए। Started whipping him. और उसे मारने लगे। Stripes on his back. कोड़े उसके पीठ। Flesh torn apart. और उसका जो उसका मांस है वो निकला। Kept a crown of thorns on his head. और एक कांटों का ताज मुकुट उसे पहनाया गया। Insulted him, slapped him, spat at his face. उसकी बेइज्जती की गई, उसे मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया है। Mary could not understand, but she kept everything in her heart. शायद से मरियम को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन सारी बातों को उसने अपने हृदय में रखा। She kept everything in her heart. She could not imagine that her son is going to die right in front of her. उसे नहीं समझ में आ रहा था और वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बेटा उसके सामने मर जाएगा। I'm talking to somebody right here whose dreams are dying right in front of your eyes. मैं यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जिसके अपने सपने जो है उसी के सामने खत्म हो। आंखों के सामने तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खत्म हो रही है। You never dreamt of your marriage life to be like that, but it's going something else. और आपने शायद विचार नहीं किया होगा कि आपकी शादी की जो जीवन है वो ऐसा होगा, लेकिन शायद से अब किसी और तरफ जा रहा। You thought that your family life would be like this, but it's like that. आपने कभी नहीं सोचा कि आपका पारिवारिक जीवन जो है ऐसा होगा, लेकिन वो किसी और दिशा में जा रहा है। You thought that your career would be like this, but it's going like that. आपने सोचा कि आपका करियर कुछ ऐसा होगा, लेकिन वो किसी और दिशा की ओर बढ़ रहा है। Everything going the other way. और हर बात दूसरी दिशा में बढ़ रही है। Your son dying right in front of your own eyes. उसका बेटा उसकी आंखों के सामने ही मर रहा। She could not understand anything. उसे नहीं समझ में आ रहा था क्या है। Somebody get on the keyboard. She could not understand anything, but she kept it in her heart. उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने चीजों को अपने हृदय में ही छुपा कर रखा। She kept the secret in her heart. उसने उस रहस्य को अपने मन में रखा। The secret in her heart. रहस्य को अपने मन में रखा। Jesus यीशु was given a heavy cross on his shoulder. क्रूस को उठाकर जा रहा है He was carrying it towards Calvary. और कलवरी की ओर वो आगे बढ़ रहा है। और इतना बड़ा जख्म यहाँ पे इस खांधे पे हो गया कि वो लकड़ा उसके मांस को चीर के
उसके हड्डियों तक पहुंच गया. Did you understand what I'm saying? Jesus went through something. यीशु कुछ बात से होकर गए, He went through something. कुछ बात से होकर उन्हें जाना पड़ा. They took him, they banged him on that cross and started nailing his hands. और उन्होंने उसे उठाया, उस क्रूस पर पटक दिया और उसके हाथों में कीले लगाने लगे. They nailed his feet. उसके पैरों पर कीले लगाए गए. उसके घुटने छिल गए थे, तोड़ दिए गए, क्योंकि हम लोगों ने गलत जगह घुटने टेके हैं. Am I talking to somebody here? उसके हाथों को कीले मार दिए गए क्योंकि हमने गलत काम किए हैं हमारे हाथों से. उसके आंखों को मार दिया गया, फोड़ दिया गया क्योंकि हमारी आंखों से गलत चीजें हमने देखी है. उसके मुंह पे, उसके चेहरे पे मार दिया गया क्योंकि हमारे जुबान से गलत शब्द निकले हैं. He was wounded for our transgressions. हमारी गलतियों के लिए उसे चोट पहुंचाई गई. And all this is happening right in front of a mother. और ये सारी बातें उसकी माँ के सामने हो रही. And she couldn't do nothing about it. और उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रही. She couldn't do a thing about it. कुछ नहीं कर पा रही है इसके बारे में. She felt helpless, but she knew. उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ होगा, लेकिन वो जानती थी एक बात. She knew that God is up to something. वो जानती थी कि परमेश्वर कुछ करने पर है. I'm talking to somebody right here. यहाँ पर किसी से बात कर रहा हूँ. Am I talking to somebody right here? क्या मैं आज किसी से बात कर रहा हूँ? Life is not going the way you want it to go. जीवन जैसे आप चाहते थे शायद वैसा नहीं जा रहा है. Your relationships are going down. आपके जो संबंध हैं वो नीचे जा रहे हैं. Can I talk to somebody? Your faith is going down. आपका विश्वास नीचे जा रहा है. Can I have some honest people here? क्या यहाँ पर कुछ सच्चे लोग हैं यहाँ? ईमानदार लोगों से मैं ये भी पूछ रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं तुम्हारा विश्वास अब उतना दृढ़ नहीं है जितना एक जमाने में हुआ करता था. आज there was a time you used to hold on. You used to believe on the promises of God, but as time passed by, you saw everything being ripped apart and it's all gone down. एक समय था जब आप परमेश्वर के वादों से, उसके वाचों को आप थामे रखते थे, लेकिन अब एक ऐसा समय है कि आप नीचे जा रहे हो, सब कुछ उलट पुलट यहाँ वहाँ हो रहा है. Your hopes are going down. आपकी आशाएं नीचे जा रही हैं. Your trust going down. आपका विश्वास नीचे जा रहा है. The Son of God प्रभु का बेटा is going through this mess. इस दौर से होकर जा रहा है. She had no clue what's going on. और वो नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है. But everything was going down. Things were going down in her life. उसके जीवन में चीजें नीचे जा रही थी. Somebody is in this hall this evening. और आज की शाम कोई तो ऐसा इस हॉल में है. You know why God brought you here? आप जानते हैं प्रभु आपको यहाँ पर क्यों लेकर आए. Things are going down, but you know why you're here? चीजें नीचे जा रही हैं, लेकिन आप जानते हैं आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं. आपका विश्वास नीचे जा रहा है. फैमिली लाइफ में सब कुछ नीचे जा रहे हैं. कुछ लोग यहाँ हैं जिनका फाइनेंसेस नीचे जा रहा है, बैंक बैलेंस नीचे जा रहा है, सब कुछ नीचे जा रहा है. लेकिन प्रभु ने पता है क्यों यहाँ पे आपको लाया है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की एक नई कहानी की शुरुआत करना चाहता है. I want to tell every mother sitting here in this hall. और आज यहाँ पर हर माँ से मैं बात करना चाहूंगा जो इस हॉल में बैठी है. आपका एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा. Every daughter, say that in English whenever I speak Hindi. Every daughter, हर एक बेटी, every mother, हर एक माँ, every wife, हर एक पत्नी, every sister, हर एक बहन, your tears are not going to be wasted. आपके जो आंसू हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे. God has kept an account of your tears. प्रभु ने सारी बातों का जो तोल है वो रखा है अपने पास. I want to speak to every man, every husband, every brother, every son.
हर आदमी से, हर पति से, हर भाई से, हर बेटे से मैं कहना चाहता हूँ, Everything that you have been through, God will reward you with a breakthrough. हर वो बात जिससे आप होकर गए हैं, परमेश्वर आपको विजय के साथ उसे Your लौटाएगा। pain will not be wasted. It's time to gain out of your pain. आपका जो दर्द है वो व्यर्थ नहीं होगा, उसी में से परमेश्वर आपको विजय देगा। I know you can't understand your life right now. मैं जानता हूं कि आप अपने जीवन को इस वक्त शायद नहीं समझ पा रहे। I can see some of you wiping your tears right now. मैं देख रहा हूं आप में से कुछ लोग अपनी आंसुओं को पोंछ रहे हैं, But I'm here to tell you लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए हूं ताकि मैं आपसे कहूं the treasure that's in your heart. कि वो बात जो आपने अपने दिल में संभाल कर रखी है, God has seen it all. परमेश्वर ने वो सब देखा है, God has seen it all. परमेश्वर ने वो सब देखा है। It's time for a reward. अब ये समय है कि आपको आपका इनाम दिया जाए। It's time for a reward. ये समय है कि आपको आपका इनाम दिया जाए। Dead son in the arms of the mother. और एक मरा हुआ बेटा अपनी माँ के गोद में। क्या खुदा यही है वो जो आपने कहा था, you are highly favored, and यही है वो? God, is this the one that he said will be highly favored? Is this the your one? promise? Is this your promise to me, Lord? क्या यही तुम्हारा वादा है प्रभु मेरे लिए? Is this your prophecy that you have given me, Lord? प्रभु क्या यही भविष्यवाणी है जो तूने मेरे जीवन पर की? Is this my born again life? क्या यही मेरा नया जो जीवन है वो है? I don't have a clue what's going on in my life, Lord. और मैं जानता भी नहीं कि मेरे जीवन में क्या हो rहा है इस वक्त प्रभु। And they took him and laid him in the graveyard. और वो उसे लेकर गए और एक कब्रिस्तान में उसे डाल दिया गया। Mary had hopes that something would happen, मरियम के पास आशा थी कि कुछ तो जरूर होगा, but nothing happened. लेकिन कुछ नहीं हुआ। She thought that if God had spoken, वो सोच रही थी अगर परमेश्वर ने कहा है He would show me better days. वो मुझे अच्छे दिन दिखाएगा, But nothing happened. लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और कोई यहाँ बैठा है जो ये सोच रहा है कल कुछ होगा, कल कुछ होगा, कल कुछ होगा, और 2005 में कुछ होगा, 2008 में कुछ होगा, 2012 में कुछ होगा, 2014 में कुछ होगा, 2016 में कुछ होगा, और आधा साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको आज की शाम ये बताने आया हूँ कि इस साल का सेकंड हाफ तुम्हारे नाम है, क्योंकि खुदा ने तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही को तैयार रखा है। It's your time. और ये आपका समय है। You're still wondering. और आप अभी भी सोच रहे हैं I've been praying for years, but my husband has not yet accepted the Lord. मैं सालों से प्रार्थना कर रही हूँ लेकिन मेरे पति ने अभी तक प्रभु को स्वीकार नहीं किया। I've been praying for years, मैं सालों से प्रार्थना कर रही हूँ but my body is still sick. लेकिन मेरा शरीर जो है अभी भी बीमार है। I've been praying for years, मैं सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ but my family life is still messed up. लेकिन मेरा पारिवारिक जीवन जो है वो अभी भी गड़बड़ में है। I'm here to tell you, God is going to change your story upside down. मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर आपकी कहानी को अब पलटने वाला है। ओ संपूर्ण रीति से पूरी जिंदगी की काया पलटने वाली है आपकी। Everything is going to go upside down. There's going to be a testimony. सारी बातों को परमेश्वर पलटने वाला है और एक गवाही है जो आपके जीवन से होगी। Everybody gave up but Mary. हर किसी ने अपनी आशा को छोड़ दिया था मरियम के अलावा। Mary knew that God is going to do something out of this story. मरियम जानती थी कि परमेश्वर इस कहानी में से कुछ जरूर करने वो वाला। अच्छी तरह जानती थी कि ये कहानी का द एंड नहीं हो सकता। She knew it very well that this is not the end. अगर ये है मसीहा तो कब्रिस्तान में इस कदर खत्म नहीं हो सकता। If this is the Messiah, he cannot end up into a grave like this. और उन्होंने ठीक सोचा था। ठीक तीसरे दिन उस कब्र में हलचल होने लगी और मसीहा उठ के बाहर आया वहां से। And on the third day, सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। and on the third day, something happened and Christ came back because nobody can bury the truth. Jesus rose again. यीशु मसीह फिर से जी उठे। Can I talk to somebody?
क्या मैं आज किसी से Can I बात talk कर to somebody? क्या मैं आज किसी से बात कर सकता Can I prophesy over somebody? हूं? क्या मैं आज किसी के जीवन पर When my भविष्यवाणी कर finger comes to you, just shout out aloud, Amen. जब मेरी उंगली आपकी ओर आए तो जोर से आमीन कहें। Jesus rose up, right? यीशु मसीह जी उठे, सही। Your dead dreams are going to rise up. और आपके मरे हुए जो सपने हैं परमेश्वर Your उन्हें dead जागृत finances करेगा। are going to rise up. आपके मरे हुए पैसे, आर्थिक बातें परमेश्वर Your उन्हें जागृत dead bank account is going to rise up. आपके मरे हुए बैंक बैलेंस परमेश्वर जीवित Your करेगा। dead family life is going to rise up. मरा हुआ आपका पारिवारिक जीवन परमेश्वर Your जागृत dead करेगा। faith is going to rise up. और तुम्हारा मरा हुआ विश्वास जगने वाला Everything is going to come back to life. और हर बात फिर से जीवित हो जाएगी। The game is not over. क्योंकि जो गेम है वो खत्म नहीं हुआ है, खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ। ना 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 ना। तुम्हारे हृदय में इतना जो कुछ आपने दबा के रखा है, Everything that you've treasured in your heart, खुदा उसके बदले में आपको 10,000 गुना ज्यादा देने वाला है। God is going to give you back 10,000 times. Now watch this. अभी इसे देखें। I want everybody to stand up. Listen to me carefully. मैं चाहता हूं कि आप सभी खड़े हो जाएं और ध्यान से मुझे सुने। Listen to me very carefully. ध्यान से मुझे सुने। I want some broken people. मैं चाहता हूं कि कुछ टूटे हुए लोग, जिंदगी से हारे हुए। people who've lost everything in their life. I know you won't come forward because if you're worried about others, you're going to lose out on your miracle. मैं जानता हूं कि आप आगे शायद से नहीं आए, लेकिन अगर आप लोगों की चिंता करें, लोगों से डरें, तो शायद से आज अपने जीवन में आप कुछ खो देंगे। I want some people who are feeling low in life. I want some people who are confused in life. I want you to leave your seats. Whom life has broken, I want you to just come forward right here. मैं चाहता हूं ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में हार मान ली है, जिनका हृदय, जिनका जीवन टूटा हुआ है, कोई आशा नहीं, मैं चाहता हूं कि आप आगे आ जाएं इसमें।